नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं कार्यक्रम में। चरणों ने असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारे यहाँ एक बहुत प्राचीन प्रार्थना है जिसका मतलब है लीड मी फ्रॉम अनरियल टू रियल, फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महाकवियत्री महादेवी की ये कविता इस दीपक को अर्पित। संसद भवन का वो ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल जो साक्षी रहा है इतिहास की बड़ी बड़ी तारीखों का, गवाह रहा है महान व्यक्तित्वों के ऐतिहासिक भाषणों का, देश की नीति निर्धारण का, और आज ये गवाह बनेगा भारत के आकांक्षी युवाओं की बुलंद आवाज़ों का। मानो यहाँ की दीवार पर सजी हुई एक एक तस्वीर की महान विभूतियाँ भारत के इन युवाओं को अपना आशीर्वाद दे रही हो। और अब हमारा निवेदन है सचिव युवा मामले श्रीमती मीता राजीव लोचन आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें और साथ ही नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में एक ब्रीफ रिपोर्ट भी पेश करें। नमस्कार। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट निशित प्रमाणिक जी, ऑनरेबल एमपी अनुराग शर्मा जी, श्री कंचन गुप्ता जी, सीनियर एडवाइज़र, and my colleagues in the ministry, joint secretary, my dear young friends, winners and participants of the National Youth Parliament Festival, Namaste and a very good morning to all of you. On behalf of the Department of Youth Affairs and Sports, today I extend a very warm welcome to all who are present at this occasion, and thanks to dignitaries for taking time out and gracing this particular occasion. Friends, this is the 4th edition of the National Youth Parliament Festival. It is a platform for all the young people in this country to articulate their opinions on the issues of the day. It is an excellent platform where they can speak and also listen to others and connect with each other on the issues of the day. It is a platform where they could also polish their speaking skills, develop respect and tolerance for views of other people, develop an understanding that respect for rules is essential, and share a vision of New India. Such a vision of New India is only possible when all the young people in this country come together and articulate their views in a common platform. In this edition of the National Youth Parliament Festival, more than 2 lakh youth have participated. This festival is based on the idea given by the Honorable Prime Minister in his Mann Ki Baat address on 31st December 2017. Since then, this festival has been organized in 2019, 2021 and 21-22. And on all occasions, we have seen a very hearty and extensive participation by young people. Friends, in today's festival, it is such a pleasure to see women participants in such large numbers. Out of the 85 youth who are present here today, 61 are women. This was also the case last year, so it is wonderful to see that women are leading from the front.
Friends, whatever be the parameter that you use, whether it is politics, whether it is business, whether it is education, we can see that women in India are making their mark. In fact, just last year, for the first time since 1947, we saw that the numbers of women have crossed the numbers of men. So this is a historic moment and a turning point for India, that for the first time the sex ratio has turned positive. On other parameters also, when we look at politics, just last year, I think for the first time, the figures for women participating in local bodies was compiled country-wise. India is one of the very few countries in the world that has made reservation for women mandatory in local bodies, both in urban local bodies and in rural local bodies. Currently, the figure for India is 44%, which means that against a mandated minimum of 33, there are 44% women in the local bodies of India. If you look at the entire world, then India is among the top 5 countries in this regard. This is indeed something to be very, very proud of. And in fact, since 2018-19, women students have exceeded men students in higher education and in school education. To my mind, this is also a figure which speaks well of us as a people and as a society, because if women are being elected in larger numbers than the minimum, it also means that men are willing to share power. After all, men are willing to vote for women even otherwise where the seat is not reserved for a female candidate. So I think that speaks very well of us, that as a society there are no gender wars, and in general when we look at India as a democracy, we see that Indians are willing to take everyone along with them to discuss and debate on the issues of the day and to involve every last person in the tasks of governance. That is why it is said that India is the mother of democracy in every way. And this is one of the reasons for starting this Youth Parliament Festival. It has seen very extensive participation at all different levels. When we participate in such functions, it reaffirms our faith in India as a democratic society. So once again, I welcome you all to today's function. I am sure that all of you would do very well now and in the future. Our heartiest best wishes to you for all your endeavors. Thank you, Namaste and Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदया, श्रीमती मीता राजीव लोचन जी। हमें बेहद खुशी है युवा दोस्तों कि आज युवाओं के आपके विचार और तर्क के समंदर का मंथन करने के लिए हमारी जूरी के एमिनेंट मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, जो बेहद अजीम शख्सियतें हैं और बहुत प्रबुद्ध भी हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहूँगी। जनप्रिय प्रतिनिधि हमारे बीच में लोकप्रिय माननीय श्री अनुराग शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका माननीय आज के इस कार्यक्रम में युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए भी। और हमारे बीच में है रिस्पेक्टेड श्री कंचन गुप्ता जी, जो कि सीनियर एडवाइज़र है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। आप एक बहुत ही मकबूल जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय। और दोस्तों, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्हें प्रेजेंट गवर्नमेंट में सबसे युवा मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। जी हाँ, माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी आज यहाँ पर मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय। आज ये युवा यहाँ आकर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आकर बहुत अभिभूत हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप अपनी शुभकामनाएं इन्हें दें, इनका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका माननीय श्री निश्चित प्रमाणिक जी, जोरदार तालियां। जूरी के सदस्य श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद लोकसभा, श्री कंचन गुप्ता जी, वरिष्ठ सलाहकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्रीमती मीता राजीव लोचन जी, सचिव युवा मामले विभाग, मनोज तिवारी जी भी कुछ ही देर में यहाँ पर पधारेंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और मैं उन सभी युवाओं को मैं स्वागत करना चाहूँगा जो अपनी प्रदेश की, अपनी राज्य की सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, बल्कि भारत की विभिन्न संस्कृति और अपने विचारों को इस मंच के माध्यम से पूरा देशवासियों के साथ कुछ ही देर में साझा करने वाले हैं। सभी प्रतिभागियों को, देश की हर एक राज्य से, हर एक प्रांत से आए हुए सभी युवा को मैं स्वागत करता हूं। आज आप, हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हम इस महान सदन में हम एक साथ सब लोग बैठे हुए हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जहां पर भारत की महान संविधान की संरचना की गई। ये एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल है जहां पर अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति और सत्ता की हस्तांतर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में इसी ऐतिहासिक स्थल पर हुई है। अब सभी लोगों के पीछे लगे हुए ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि इतिहास की एक एक पन्ना है। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि आप, हम सभी युवाओं की प्रेरणा की स्रोत है। मैं कुछ ही देर में आप लोग यहाँ पर इस मंच से आप लोगों का मूल्यवान जो वक्तव्य है, मूल्यवान जो आप लोगों का विचार है, तर्क है, यहाँ पर रखने वाले हैं। और आपकी यही मूल्यवान विचार, यही मूल्यवान तर्क देश को आगे जाके मार्गदर्शित भी करेंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ मार्गदर्शित ही नहीं बल्कि आप लोगों की जो जोश है, मुझे जो जोश दिखाई दे रही है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप लोगों का ये जोश, ये ऊर्जा भविष्य की भारत कैसी होगी, भविष्य की भारत एक आर्थिक रूप से समृद्धशाली, सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ साथ, मनोज जी को मैं आसन ग्रहण करने के लिए बोलूँगा, सांस्कृतिक विरासत और उसके साथ साथ बौद्धिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली एक देश होंगे, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ये मुझे आज की आप लोगों की यहाँ पर उपस्थिति और आप लोगों की यहाँ पर जो ऊर्जा मैंने देखा है, इससे मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आप लोगों में जो ऊर्जा है, आप लोगों में जो जोश है, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये लोकतंत्र जितना विशाल और जितना शक्तिशाली है, उससे भी कई गुना शक्तिशाली आप लोगों की फौलादी इरादा है, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं।
और माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जिस तरह से देश को विश्वगुरु बनाने के लिए सपना देख रहा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सभी लोग उसका एक एक हिस्सा बनेंगे और इतिहास में आप लोगों का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हमारे देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा युवा आबादी वाले देश है। हमारे देश एक नया भारत के रूप में उभर कर आ रही है, चाहे वो विश्व महामारी की परिस्थिति में हो या चाहे वो यूक्रेन और रशिया की विपरीत परिस्थिति में हो। हर जगह में हमारे देश की ध्वज का सम्मान दिन ब दिन बढ़ा है और इसमें देश की युवा का, देश की यूथ का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। चाहे वो विपरीत परिस्थिति में कोरोना महामारी का 2 साल गया, लेकिन फिर भी हमारे देश के युवा नया आइडिया के साथ उभर कर आया और 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न हमारे देश से बना। ये हमारे बदलता हुआ देश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था, उसी को आप सभी लोग मिलके धीरे धीरे साकार कर रहे हैं। अगर इस सबसे बड़ा विश्व की आबादी वाले देश जो है, युवा आबादी वाले देश, इसमें कोई सबसे ज्यादा युवा के लिए सोचते हैं, कोई अगर किसी का मन में सबसे ज्यादा युवा के लिए प्रेम और सम्मान है, तो वो और कोई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हर एक क्षेत्र में देश तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, गति के साथ, बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, कृषि हो, शिक्षा हो, सभी क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ देश की युवा भी आगे बढ़ रहा है। और देश की युवा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का उनका जो मार्गदर्शन है, उनका मार्गदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं कि युवा के लिए उनके मन में कितना ज़्यादा सम्मान और प्रेम है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे मिला है कि एक साधारण आम परिवार से आए हुए, जिसके साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था मेरा परिवार का, वहाँ से आए हुए साधारण कृषक परिवार का, पिछड़े हुए वर्ग का एक युवा को एक भारत सरकार की मंत्रालय में उन्होंने इतना दायित्व दिया। तो इससे समझ में आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का युवा के प्रति कितना प्रेम और सम्मान है। मैं 33 साल की उम्र में इस महान संसद में आने का मुझे मौका मिला और 35 साल की उम्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की खेल युवा कार्यक्रम और उसके साथ साथ गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री के रूप में दायित्वभार अर्पित किया। ये सबसे बड़ा मेरा लगता है कि युवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रेम है, जो सम्मान है, जो सद्भाव है, यही दर्शाता है। और आज हम सभी युवाओं का भी ये दायित्व होता है कि देश को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए देश के लिए हम लोग मर मिटे, देश के लिए हम लोग कुछ करें और ये प्रमाणित करें कि भारत की युवा भी पीछे नहीं है, भारत की युवा भी बढ़ चढ़ कर कार्य करना चाहते हैं। और लोग कहते हैं कि आज की युवा देश की भविष्य है और मैं कहता हूं कि सबसे युवा आबादी वाली देश, सबसे युवा देश विश्व की भविष्य है। भारत विश्व की भविष्य है, हमारे देश विश्व की भविष्य है। और आज तो आप लोगों की बात सुनना है और मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि इस युवा कार्यक्रम में प्रतिभाग लेने वाले जितने भी यहाँ पर आए हैं आप लोग प्रतिभागी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं यह कहूँगा
कि पुरस्कार बड़ा बात नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर आए, आपका जो विचार है पूरा देश का युवा को प्रेरित करेगा। मैं सोचता हूँ यही सबसे बड़ा पुरस्कार आप सभी लोगों के लिए है। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज आप लोगों का सुनना है। और फिर यहाँ पर एक बार मैं मनोज जी का, अभी मनोज जी पहुँचा, बहुत अच्छा जूरी जो है आप लोगों को मिला है। अनुराग जी जैसा विद्वान दिग्गज जो है संसद, और उसके साथ साथ एक कलाकार जो है हमारे मनोज तिवारी जी, दोनों का आप लोगों का जूरी के हिसाब से आप लोगों को मिला है। मैं सोचता हूँ आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है, हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन युवाओं के लिए यही विचार दिमाग में आ रहे हैं कि संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि हमारे बीच में हमारे जूरी के एक और मेंबर पधार चुके हैं, माननीय श्री मनोज तिवारी जी, लोकप्रिय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। और ये हम सभी जानते हैं कि आप एक जाने माने गायक कलाकार भी, अभिनेता भी और संगीतकार के रूप में भी जाने जाते हैं और माने जाते हैं। और हम हमारी जूरी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, हृदय से आभारी हैं उनकी मौजूदगी के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। तो अब हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री महोदय आपसे कि कृपया आदरणीय मेंबर्स जो हमारे जूरी के हैं उनका सम्मान करें, उन्हें मेमेंटो स्मृति चिन्ह भेंट करके। तो सबसे पहले माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया माननीय श्री अनुराग शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, को ये मेमेंटो प्रदान करें। और अब आपसे ही निवेदन है माननीय कि कृपया माननीय श्री मनोज तिवारी जी जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, उनका सम्मान करें, उन्हें मेमेंटो भेंट करके। माननीय आपसे ही अनुरोध है कि रिस्पेक्ट श्री कंचन गुप्ता जी जो कि सीनियर एडवाइज़र है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में, उन्हें भी ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह, जैसा कि नाम से ही भावना स्पष्ट हो रही है कि एक ऐसा चिन्ह जो हमेशा के लिए हमारा यादगार बन जाए, हमारी यादगार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स श्री नितेश मिश्रा आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। सबों को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री निशित प्रमाणिक जी, रेस्पेक्टेड ज्यूरी मेंबर्स, ऑनरेबल एमपी श्री अनुराग शर्मा जी, ऑनरेबल एमपी श्री मनोज तिवारी जी, रेस्पेक्टेड श्री कंचन गुप्ता जी, एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मिस मीता राजीव लोचन, Sri Prasenjit Singh, Additional Secretary Lok Sabha, all the proud participants from different states and union territories, and all the officials present here. At the outset, I would like to express my heartfelt gratitude to Sri Nisit Pramanik Ji, Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, for your presence in this program despite your busy schedule. Your benevolent presence has motivated not only the young speakers present here, but lakhs of other youth who get to listen to you from far-flung areas of the country while watching this program. We are extremely grateful to Honorable Sri Anurag Sharma Ji, Member of Parliament, and Honorable Sri Manoj Tiwari Ji, Member of Parliament, for accepting our request to act as jury members during the National Level Youth Parliament Festival. Respected Sri Kanchan Gupta Ji, Senior Advisor, Ministry of Information and Broadcasting, was kind enough to accede to our request to act as jury member. I am extremely thankful to Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary, Department of Youth Affairs, for her continuous guidance and support to make this event successful in such a short time period.
I would be failing in my duty if I do not express my gratitude to Sri Prasenjit Singh, Additional Secretary Lok Sabha, for coordinating with Ministry of Youth Affairs and Sports to organize this national level Youth Parliament Festival in this historic central hall of the Parliament. I would also like to express my thanks and appreciation for the young speakers who have come from different states and UTs to participate in national level Youth Parliament Festival in this historical central hall of the Parliament. With your cooperation and support, I am sure that 4th National Youth Parliament Festival will become a memorable event. I take this opportunity to extend my gratitude to all the officials of Ministry of Youth Affairs and Sports, NYKS, NSS, Pride, Lok Sabha Secretariat, NIC and Sansad TV for your support and cooperation in the successful conduct of 4th National Youth Parliament Festival. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद श्री नितेश मिश्रा जी। और अब आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम हृदय से आभारी हैं माननीय मंत्री महोदय श्री निशीथ प्रमाणिक जी आपके कि आप यहाँ पर पधारे। हमारा ये जो कंपटीशन है ये अब कंटिन्यू रहेगा। हम हृदय से आभारी हैं माननीय मंत्री जी आपके। और हमारे जो निर्णायक मंडल के जो जूरी हैं वो अभी आप सभी के बारे में निर्णय लेंगे। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री महोदय जी का कि वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने हम सबका उत्साहवर्धन किया, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही हम सबका उत्साहवर्धन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप सभी से निवेदन है कृपया आप लोग अपने ही स्थान पर रहेंगे। हमारा ये प्रतियोगिता का दौर अब शुरू होने जा रहा है। आपसे निवेदन है आप लोग सभी अपने ही स्थान पर रहें। आप देख रहे थे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का सीधा प्रसारण। देश के युवाओं के विचारों का ये प्रतिबिंब बताता है कि भारत का भविष्य उज्जवल है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर देश भर से आने वाले छात्रों को संसद के केंद्रीय कक्ष में मुख्य तौर पर 3 विषयों पर बोलने का अवसर मिल रहा है। साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा, भारत की G20 अध्यक्षता, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत। संसद टीवी की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।